Chief Election Commissioner, Mr. Rajiv Kumar announced the Lok Sabha schedule, also spoke about a number of other factors which go on to define the dance of democracy, which is going to kickstart in just a few weeks from today. The model code of conduct, the money factor, the muscle factor, everything was discussed. He also laid out an explanation as to why this is being done in 7 phases, something that the opposition has been crying foul about. He in fact went on to granularly explain as to why 7 phases are needed. We'll get into these nitty-gritties. We'll also get to state-wise, city-wise, district-wise assessment and of course focus of elections and where they are going to take place. We're going to start with my colleagues who are in fact spread all over the country, get their in fact report and assessment of what that area is going to be in fact witnessing in terms of the election date, the voting date and so on and so forth. Shubh Rana, my colleague, is joining us from Delhi at this point in time. Shubh, I hope you can hear me. Shubh, yes, are you there with us? Vineet, you're audible. Yeah, well, May 25th is going to be the day for Delhi and Gurugram to vote. This is pretty much similar. The itinerary or the schedule is pretty much similar to what happened in 2019 as well. The Chief Election Commissioner saying that this is a calibrated way of doing things and people are going to come out in hordes. 97 odd crore people who will be looking to vote for their favorite party. What more can you tell us? Speak to the people that are around you. In fact, try and figure out how does this also play out in terms of the excitement that the elections bring about every 5 years. Yes, of course, Vineet. I'm live reporting from Red Fort, and you know, the main battle is between who will host the flag here at 15th August. And you know, I'm surrounded by people, and just few minutes ago, Election Commission have came out with the election dates. And मैं इन लोगों से पूछूंगी कि देखिए किसको वोट देंगे. आपका नाम, कहाँ से हैं? बनारस. बनारस. Yes. किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को. मोदी को वोट देंगे. किस आधार पर वोट देंगे? वो लोगों के लिए हर जगह अच्छे अच्छे काम और उसके अच्छे विचार हैं, जिस वजह से मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ उनके दिल्ली शहर में घूमने के लिए. और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल कर सबको यही बताऊँ कि मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री शायद कभी ना आ पाए. इसलिए मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार को ही वोट सब लोग दें. यूपी के गढ़ से हैं, मोदी सरकार को फेवर कर रहे हैं. आप कहाँ से हैं, किसको वोट देंगे? गोरखपुर से. गोरखपुर से किसको वोट देंगे? किन मुद्दों पर वोट देंगे ये बताइए. मोदी जी का काम बढ़िया है, उनके नेतृत्व में काम बढ़िया हो रहा है, अच्छी सरकार मोदी जी. देखिए मोदी के नारे लग रहे हैं, इनसे पूछते हैं, ये नारे लगा रहे थे. अब की बार मोदी सरकार, अब 400 पार मोदी सरकार. हम यूपी से है, मेरठ से, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा समर्थक है मोदी का. और हमारे यहाँ पे हर विकास मोदी की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है. चोरी चारी जो होती थी वो भी अब बंद होगी. देखिए ये बताइए, चुनाव की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, चुनाव होने वाला है, कितने एक्साइटेड है, किसको वोट देंगे? मैम बीजेपी को दे देंगे. बीजेपी मोदी. देखिए विनीत, आप देख सकते हैं मोदी सरकार की जो यहाँ नारे लग रहे हैं. और मैं इनसे पूछना चाहूंगी कहाँ से है? हरियाणा में किसको वोट देंगे? मोदी जी को. किन मुद्दों पर वोट देंगे मोदी सरकार? ने जो किया है उन्होंने किसी ने किया नहीं आज तक. क्या किया है? 4 काम गिनवाइए. केजरीवाल ने ना दिल्ली की ऐसी की तैसी कर दी. और मोदी जी ने, अगर मोदी जी इस दिल्ली में आ गए ना, जहाँ भी आपको कूड़ा दिख रहा है वो कूड़ा नहीं दिखेगा आपको. एक मानते ना, कहते हैं जिसको चाट ले वैसे चाटने के मन करे पब्लिक को. ये लिख के दे रहा हूँ मैं. आप कहाँ से हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे ये बताइए. क्या मुद्दे होंगे? धर्म, जाति, कामकाज, किन मुद्दों पर वोट देंगे? किन मुद्दों पर वोट देंगे? मोदी को हम जिताना चाहते हैं. मोदी की तरफ से है, मोदी के सांसद आदर्श ग्राम से हैं हम लोग, और मोदी को जिताना चाहते हैं. वही हमारे देवता हैं. उन्हीं के दिन से हमारी भारत जो है अच्छी तरक्की तरक्की कर रही है. हम इस बार भी उन्हीं को जिताना चाहते हैं. 4 काम गिनवाइए जरा उनके. किस आधार पर वोट देंगे? अरे मोदी के बहुत से काम है. जैसे बहुत से काम है. आप कैसी बात करें? जैसे रिंग रोड. काम बताइए. रिंग रोड. अच्छा. और मंदिर, राम मंदिर का निर्माण किया. इनकम पर कैपिटा इनकम देखिए, बहुत मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है. जो हमें हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज तो हमारे धर्म की रक्षा है आज. और शंकर भगवान की
देखिए you can witness there is surely a Modi leher, and I'm currently reporting live from Red Fort, and people are saying that they'll vote for BJP on the basis of Ram Mandir, on the basis of the work they have done. And you know, the election dates have been announced and people are very excited about that, and soon the elections will happen in 7 phases, and it's interesting to know that how people will vote, because right now I'm reporting live from Red Fort and people here are doing Modi Sarkar's Jaikaras. Yes, back to you. Shubh, thank you for that. In fact, we're going to cut across to Jammu and Kashmir now, where my colleague Ajay Jandyal is also joining us. Ajay, I hope you can hear me. Thank you for speaking with us. Ajay, are you there? Yes, Vineet, I can. While the Lok Sabha dates have been announced today, Jammu and Kashmir are going to be voting on the 19th, the 26th, the 7th, the 13th and the 20th of May. The assembly elections are expected to take place by the 30th of September is what we heard from the Chief Election Commissioner today, Mr. Rajiv Kumar. Try and assess what's the mood there after hearing this. Of course, the people of Jammu and Kashmir are embracing the Viksit Bharat dream that has been in fact incumbent in this particular part of the country for so long. Well, see, you know, it was something which was basically most awaited thing as far as the election dates are concerned, and people were eagerly waiting for the same, because they know that after every 5 years they have to once again go to elect their representative, parliamentary representative, and definitely they are going to choose a prime minister of a country. So that's why they were eagerly waiting, and we have reached here in the Gandhinagar market, Apsara market area, and you could see the number of people, those who are basically standing here. We'll try to speak to them that what they have to say. वरुण, चुनाव जो हैं अब आ गए हैं, तो डेट्स आ गई हैं, क्या लग रहा है 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में 370 टूटी, क्या बदला, क्या लगता है क्रेडिट किसको जाएगा और वोट किसको जाएगा? देखिए, क्रेडिट तो पूरे देश भर को मैं पता है कि क्रेडिट तो मोदी जी को ही जाएगा। यहाँ पे 370 हटने के बाद बहुत ही डेवलपमेंट देखी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट देखी गई है। एम्स, आईआईटी वगैरह जो कॉलेज यहाँ पे खुले हैं उससे भी लोग काफ़ी खुश हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पर हम दिखाएंगे कि जम्मू वाले मोदी जी के साथ हैं। जिस तरीके से 370 हटी, उसके बाद लगता है लोगों में क्रेज है और मोदी जी का जो पकड़ है जम्मू कश्मीर में वो और ज़्यादा बेहतर होगी। जहाँ तक आपने 370 की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवा पाया है। 10 साल बीत चुके हैं। जंडियाल साहब, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन ये कहने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, तो स्थितियां साफ जाहिर होती हैं कि 370 के बाद क्या ठीक हुआ क्या नहीं। लोग साइलेंट बैठे हैं और इसका जवाब जो है 370 का साइलेंटली देंगे वोट के जरिए से। और आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी वो भी छिनने वाली हैं। आप मानते हैं 2 सीटें छिनने वाली? आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो मोदी जी को 5 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मोदी जी को जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, मोदी जी को 5 सीटों में से 3 सीटें तो अवश्य मिलेंगी। और मैं आपको ये एक 100% की गारंटी देता हूँ। जो 2 सीटें हैं हमारी, एक जम्मू पुंछ वाली और एक दूसरी डोडा कठुआ वाली, ये 2 सीटें तो हैं ही हैं। और तीसरी अनंतनाग से रजौरी तक वो भी सीट हमारी है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग, मगर देंगे क्यों मोदी जी को? आप मोदी जी को तभी सीटें मिलेगी, तभी वोट मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने डेवलपमेंट के ऊपर वोट लेने हैं। और जो धर्म का, जैसे राम मंदिर जैसे बनवाया और बाकी भी मंदिर जैसे बन रहे हैं, धर्म के आधार पर भी मोदी जी को वोट मिलने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो डेवलपमेंट के ऊपर वोट मिले, जो इतने बड़े हॉस्पिटल, आईआईटी, एम्स और इतने फ्लाईओवर जो बनाए हैं, ये सब डेवलपमेंट के ऊपर ही मिल रहे हैं वोट। लगता है जम्मू कश्मीर में 370 टूटने का जो है असर दिखेगा चुनावों में? बिल्कुल सर, क्यों नहीं दिखेगा, वो तो 110% दिखेगा। क्या लगता है फायदा मिलेगा बीजेपी को? 110% सर, आएगी तो बीजेपी। मगर बाकी जो सियासी दल हैं वो नाराज हैं। सर, उनके होने से क्या होता है, वो काम भी तो देखिए ना, डेवलपमेंट कितनी हुई है, हर जगह काम हो रहा है, मार्केट में काम हो रहा है, हर जगह जानते हैं काम हो रहा है। 100 सिटी का वादा था स्मार्ट सिटीज़ का। एक सिटी नाम लेके बता दीजिए कि तैयार होगी 100 सिटीज़ में। 370 के बाद 1 लाख रोजगार देने का वादा था प्रधानमंत्री जी का। स्वयं उन्होंने वादा किया था जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कि सालाना 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार जो है जम्मू कश्मीर के स्थानीय को नहीं मिला है। लेकिन सही बोल रही है,
देखिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इस रोड पर एक बारी घुमा के दिखाइए कैमरा, इस स्मार्ट सिटी के कैमरामैन से कह रहा हूँ साथ साथ दिखाते जाइए। भाई साहब भी इसी स्मार्ट सिटी की रोड पर ही खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट इसी के अंडर है और ये मोदी जी के डेवलपमेंट है। ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांट सकते हैं और कोई इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। इनका मिशन ही सिर्फ मोदी को हराना है, डेवलपमेट का इनका कोई मिशन नहीं है। सही है, हमारा मिशन साफ है कि मोदी को हराना है। और so you can see voices so war of word has started here, so people, those who basically are inclined towards the BJP and the Narendra Modi, they are saying that definitely but Ajay also try and speak to them. Ajay, also try and speak to them. Ajay, if you can hear me. As far as the people, those who yes. Ajay, also try and speak to them about, the security envelope that has improved in Jammu and Kashmir, the investments that are coming in Jammu and Kashmir, the state governments that are looking to invest in Jammu and Kashmir. Maharashtra and Karnataka, both these states are looking to have, buildings set up in Jammu and Kashmir where, the guests and their party people will be able to stay. All these are signs of development. Did these people see something similar when the UPA or the other governments in Jammu and Kashmir, especially the NC, was around? Yes, I'll speak to the two young voices over here because they have met me here and definitely they must be supporting one or other party. So let's speak to them as well. आपको लगता है सिक्योरिटी सिनेरियो जो है बदला है? अब महाराष्ट्र भवन कश्मीर में बनने जा रहा है। आप देखिए G20 हुआ, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या लगता है बदलाव तो हुआ है? स्वयं जो MOS हैं उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि एक भी बाहरी इंडस्ट्री नहीं लगी है कश्मीर के अंदर। मगर स्टार्ट तो हुआ है 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। 10 साल में स्टार्ट होने में लगेंगे तो फिर तो काम करने में तो इनको हजारों साल लग जाएंगे। सवाल यह है कि कितने लोगों ने यहाँ पे वादा किया गया था 370 हटाने से पहले लोगों के साथ कि यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। मुझे एक नाम आ रहे हैं यूए का एक होटल बन रहा है। आपको क्या ये लोग वही हैं जिन्होंने 70 साल तक इस देश पे राज किया है और इनको 10 साल में इनको लग रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आज बच्चा देश का जानता है, जिस कश्मीर में हर फ्राइडे को हर दिन पत्थर जलते थे, आज वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बना है। G20 पहली बारी हमारी मोदी सरकार ने करवाया, इनकी सरकार ने नहीं कराया। इनकी सरकार ने सिर्फ घोटाले किए हैं और घोटाले के अलावा इनको कुछ नहीं आता। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम वो इलेक्टोरल बॉन्ड है और इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें सभी पार्टियां हैं। आप बीजेपी पे देखिए 66,000 करोड़ रुपया, तो आप कह रहे हो बाकियों को 6,000 करोड़ हो, सबको मिला के, और भारतीय जनता पार्टी को 66,000 करोड़ मिले। क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर? देखिए सुरक्षा व्यवस्था क्या, मैं आपको सीधे बताऊं, जैसे यूक्रेन से मोदी जी इतने लोगों को वहां से निकाल के लेके आए और मोदी जी के कहने पर वहां के वार बंद करनी पड़ी उनको। ये मोदी जी का फैक्टर है। और मोदी जी ने वो जैसे उसको सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और ये कांग्रेस के 70 साल में इतने लोग मारे गए, इतने मिलिटेंटों ने लोग मारे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस। मोदी जी ने सिर्फ एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में जाके पाकिस्तान में वहां से पूरे उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मार के और वापस ले आए। क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात सर, जिस चीज के लिए हम पूरी उम्र तरसे रहे, बचपन से सुनते थे कि राम मंदिर आज कल बनाना। देखिए अजय रुकिए, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। अजय आप रुकिए, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। तारिक अनवर, former member of Rajya Sabha, is with us on the program. Mr. Tariq Anwar, I hope you can hear me, sir. Mr. Tariq Anwar, thank you for speaking with us. Well, the Lok Sabha dates have been announced today. The Chief Election Commissioner had laid emphasis on a lot of plateaus. He also, in fact, clarified a lot of questions which were being raised about EVMs, about the 7 phases, and how panning them out is very, very crucial. What's your take on this big announcement that has come? Mr. Tariq Anwar? All right, there seems to be a problem with this connection. I'm going to cut across to my colleague Deepak Vishwakarma, who's joining us from Chhattisgarh, Raipur at this point in time. Deepak, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक, 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे चुनाव छत्तीसगढ़ में। 26 अप्रैल को 3 सीटों के लिए, 7 सीटों के लिए
7 मई को। माहौल का ज़रा एक बार जायज़ा लेके बताइए कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, किसकी सरकार आएगी और किन मुद्दों पर, किन अपेक्षाओं पर वो अपना मतदान करेंगे। जी देखिए, 3 चरणों में मतदान छत्तीसगढ़ में कराया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मात्र 11 सीटें हैं और उसके बावजूद 3 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी छत्तीसगढ़ में जो बस्तर की सीट है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी माना है कि बस्तर एक ऐसी जगह है, बस्तर चुनाव हो रहा है पूरे देश में। कहाँ से आए हम? मैं मध्य प्रदेश से, दमोह। यहाँ भी चुनाव हो रहा है, यहाँ देख के क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? यहाँ पर तो जी, यहाँ पर तो भूपेश जी का है। भूपेश जी तो जा चुके हैं, आप लेट हो गए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो सर बिहार से हैं। अरे बिहार से हैं? अरे बिहार, यहाँ क्या कर रहे हैं? यार अब मैं वैशाली बिक्री में हूँ। देखिए कुछ और लोग हैं, 2 जगह मिले, एक मध्य प्रदेश से, एक कुछ और लोग हैं, उनसे बात आप कहाँ से आए? मैं ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट से आया हूँ। अरे यहाँ रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के? रायपुर के हैं। एक बात बताइए, यहाँ किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? अब देखिए, माहौल तो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर वाला बता दीजिए। बीजेपी है बस। और बाहर किसके? बाहर थोड़ा बहुत बोलते हैं कांग्रेस, बाकी बीजेपी है। कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोदी की गारंटी का जिक्र हुआ था और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी दिख रही है। किसके पक्ष में चुनाव का माहौल लग रहा है? आपके पास वापस आना चाहूंगा। मिस्टर तारिक अनवर, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, is joining us on the broadcast. तारिक अनवर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू कैन हेयर मी सर। मिस्टर तारिक अनवर, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज चुनाव की तारीखें अनाउंस की गई हैं, उनकी घोषणा की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तरह तरह के मुद्दों पर बातचीत करी। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों की चिंताएं हैं, जैसे ईवीएम हो गई और 7 फेजेस लंबा ये जो एक सिलसिला होता है, वो बेबुनियाद है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी आज की अनाउंसमेंट की घोषणा के बाद? नहीं, उनका ये कहना है कि ये ईवीएम हो या 7 चरण में चुनाव हो रहा है, ये बातें बेकार है। ऐसा नहीं है। ईवीएम को लेकर देखिए, सारी दुनिया में लोगों ने ईवीएम को नकार दिया है। जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने इसको नकार दिया है। जिसने इसका ईजाद किया था उसने भी इसको नकार दिया है। तो लोगों के दिलो दिमाग में ईवीएम के प्रति एक शक तो है। तो अच्छा होता कि इसको नकार दिया जाता, क्योंकि जब दुनिया में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो भारत में क्यों इस्तेमाल होगा। इसमें इस बात की गुंजाइश है ईवीएम में कि उसमें हेरा फेरी हो सकती है। दूसरी बात, जो 7 चरण कहा क्या जो चुनाव कराया, मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह से सही निर्णय नहीं है। 3 चरण या 5 चरण में चुनाव पहले भी हुए हैं और उसमें अगर होता तो बेहतर था। अब 7 चरण का मतलब एक लंबे समय तक पूरी मिशनरी ठप हो जाएगी और सारे लोग चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इससे जो विकास के कार्य है या दूसरे कार्य है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब उससे डिस्टर्ब होगा, शिक्षा में रुकावट पैदा होगी। तो इसको इतने लंबे समय तक इसको खींचने की आवश्यकता नहीं थी। इसको 300 हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पारामिलिट्री फोर्स की कोई कमी नहीं है और उसका इस्तेमाल सही ढंग से अगर किया जाता तो 3 फेज में भी और या मैक्सिमम 5 फेज में चुनाव हो सकते थे। सर, पर क्या खामी है आपको लगता है, क्या बुराई है अगर ये 7 फेजेस में किया जाता है? एक बड़ा देश है, बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है और अगर चीज़ किसी प्रकार से अगर नियंत्रण में की जा रही है तो अगर 7 फेजेस में भी हो तो उसमें क्या बुराई है? बुराई जो मैंने बताया, एक तो पूरी मिशनरी ठप हो जाएगी। 7 चरण का जो चुनाव होगा, एक लंबे समय तक के चुनावों की प्रक्रिया चलती रहेगी। पारामिलिट्री फोर्स उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसमें जो स्टेट की मिशनरी है, टीचर्स हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, सब उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो उतने दिनों तक तो जनता को उसको उन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होता है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराते। अगर हम राज्यों में कानून व्यवस्था सही है
और वहाँ की सरकार, राज्य सरकार अगर तैयार है तो हमें चुनाव इलेक्शन आयोग को उस पर विचार करना चाहिए था। जैसे पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल ने ये इच्छा जाहिर की थी कि एक चरण में चुनाव हो जाए पूरे पश्चिम बंगाल में। तो जब वहाँ की सरकार तैयार थी तो फिर उसको उसका सहयोग लेते हुए ये काम किया जा सकता था, ये प्रयोग किया जा सकता था। सर, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा मई जून में, ये किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की मुहिम शुरू कर सकती है उन मुद्दों को लेकर जिन पर वो वोट जनता से मांगने वाले हैं? देखिए, देश की आज अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का भी हमने देखा सबसे बड़ा नमूना जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का की जो के ऊपर से जो पर्दा उठा है, इससे तो जाहिर हो गया ना कि देश में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये भी पता चला कि किस तरह से ईडी का और सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इन सब चीज़ों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। एक तरह से लोगों को एक्सटॉर्शन किया गया है। लोगों के साथ जो उद्योगपति थे, जो अगर किसी कारण से उन्होंने चंदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है तो उनको एक तरह से एक्सटॉर्शन किया गया, उनके यहाँ छापे मारे गए, उनके यहाँ ईडी भेजी गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही है देश में, ये तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज ये देश के लोग, ख़ासतौर पर नौजवान देश का, आज आज सबसे बड़ी जो बेरोज़गारी का है आज पिछले 40-45 सालों में, वो आज है। उसी तरह महंगाई आज सबसे ऊपर है। तो आम आदमी उसमें पिस रहा है, आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। तो यही मुद्दा बनेगा इलेक्शन के चुनाव का, मुख्य मुद्दा यही बनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको भटकाने की कोशिश करेगी, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि लोग जो असली मुद्दा है उससे लोग हट जाए। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आज देश के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आम आदमी आज परेशान है, चाहे वो महंगाई से परेशान हो, चाहे वो बेरोज़गारी से परेशान हो, किसान परेशान है। कोई समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट है। महिलाएं परेशान हैं। तो ये जो स्थिति है, इसका कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है पूरे देश की, जी सर, उसके मामले, इन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और जनता के बीच लाया है। तारिक अनवर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट माय कलीग Kulbhushan in fact spoke to the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan. We're going to listen into that conversation. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा से सांसद प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से है। मध्य प्रदेश से इस बार कितनी सीटें? 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम छिंदवाड़ा भी इस बार जीतेंगे। सर, इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये केवल नारा नहीं है, जनता की असीम श्रद्धा और अटल विश्वास हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार लहर नहीं, आंधी चल रही है। हम 400 के पार जाएंगे। सर, मोदी जी ने कहा है कि हर एक बूथ में 370 वोट जो है नए मतदाताओं, सब कार्यकर्ता जुट गए, बूथ कमेटियां, कार्यकर्ता, नेता, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेता ने कहा वो होगा। विदिशा से आपका नाता रहा है, इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? जनता का असीम प्यार और विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। सर, 4 चरणों में चुनाव है, अगर चरण की बात करें, अलग अलग चरण में चुनाव है, तो क्या कुछ तैयारी बीजेपी संगठन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमें तो लग रहा है थोड़ी देर हो गई, पहले ही हो जाते और अच्छा था। 4 चरणों में तो मई तक आ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह तैयार हैं।
साफ तौर पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा से सांसद, उनका यही कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। All right. Well, you've heard it from the former Chief Minister of Madhya Pradesh that this is going to be a Lok Sabha election which is going to take care of the BJP in all the 19 seats. This is definitely a lot of positivity that is coming in from all the leaders in the Bharatiya Janata Party. My colleague Anil Mishra is joining us at this point in time from Ayodhya in UP. Anil, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल, क्या राय है लोगों की वहां पर यूपी में? अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। क्या बदलाव के अभिलाषी हैं वहां के लोग? और अगर वो एक केंद्र सरकार को अगर वोट करते हैं दोबारा, तो किन किन मुद्दों पर उनको लगता है कि काम होना चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी छवि का कितना दबदबा है, ये भी वहां पर एक तरह से उसका आंकलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए रणगे, अयोध्या की बात की जाए, जब से चुनाव का बिगुल बजा है, पूरी अयोध्या में उत्साह का माहौल है। यहाँ पर जो सांसद पिछले करीब 7 बार वो विधायक रह चुके हैं और पिछले लगातार 2 बार वो यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। इस बार फिर से जो जनता का मोड़ दिख रहा है वो बहुत ही उत्साहित है। मेरी मौजूदगी इस वक्त है अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोगों की माने तो उनका कहना है कि एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। क्या है उनके दिल का, लाइए उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसा मिजाज है, क्या मूड है उनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीन्द्र प्रकाश शास्त्री। अच्छा शास्त्री जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज आचार संहिता भी लागू हो गई है, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? हम लोगों ने मन बनाया है इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने का। भाई और भी कैंडिडेट हैं जो अपने आप को बेदाग साबित कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वो भी कर रहे हैं, फिर से उन्हीं को क्यों? ऐसी क्या खास वजह है इसमें? ऐसी खास वजह यह है कि सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या जनपद के निवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में लगभग 500 वर्षों से जो हिंदुओं की लड़ाई थी, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बनवाया गया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो मंदिर बना। और दूसरे, पूरे जनपद में विकास की धारा बह रही है। विशेष रूप से अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी श्री रामचंद्र यादव जी और माननीय सांसद जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी अयोध्या जनपद। All right, at this point in time, Union Minister General V.K. Singh has joined us. General Singh, appreciate you taking out the time and speaking with NewsX. I hope you can hear me, sir. Yeah, just say it all over again because there was something else which was going on in the background. I can hear you loud and clear, sir. Thank you so much for speaking with us, sir. So the dates for the general elections were announced today. It's going to be a momentous occasion. 5 years this dance of democracy takes place. 1.8 crores new voters are going to be coming in. The Chief Election Commissioner was very, very keen about the reforms that they have made when it comes to the transparency which comes along with this heavy responsibility of this logistical process. What did you make of the entire process that was described today, and how is this going to be one more election which is going to showcase India's prowess when it comes to getting votes from almost 100 crore people? Let me start by saying that the Election Commission needs to be congratulated for the amount of work that they have done. You would have seen that the type of figures that were given in terms of the ratios where men and women are concerned, in terms of a couple of lakh who are above 100 who are going to vote, arrangements made for 82 and above, arrangement made for people who have got some disability and find it difficult to go to the polling booth, arrangements for them. All the things that came out, I think a great amount of effort has been made to ensure that this significant event of democracy goes off extremely well. And let me also add that so far in conduct of elections, our performance has been of 6 Sigma standard. That is the type of
capability our election commission has exhibited in the past, and I'm sure they will replicate it in a much better form. So the Chief Election Commissioner also spoke about the menace of the 3 M's, the muscle, the money, and the violation of the MCC as well. And he went on to say that, the process of the Election Commission has reached such a stature that they're able to qualify only a certain states who use these 3 in distinction. Isn't that a game changer when it comes to violence that has been reported from certain states, even during the assembly elections and perhaps in the Lok Sabha elections as well? See, Election Commission right from sessions time has been making a great amount of effort to ensure that a lot of transparency comes into the elections. A lot of use of muscle power, money, fake news, all these are taken care of. And I think this time there has been a much more concerted effort to ensure that elections are fair, impartial, meet all the democratic norms, and are conducted smoothly. And that's why I said right in the beginning, I think the Election Commission needs to be complimented for this type of work that they have done, and the thinking on how they are going to ensure that the elections are conducted properly. The way the observers would be, the type of numbers, emergency numbers that they've put out where you can complain, everything has been thought of where they can take care of the challenges that they face in terms of the 3 M's that he's described. So, this conversation would be incomplete if, we don't get some of the challenges that the Election Commission also has to face. And one of them is obviously the admonishment that they face from the opposition. They always come up, with these statements that in 2019, it was a drawn-out 7-phase election. And this time too, it is a drawn-out 7-phase election. But the Chief Election Commissioner was patient enough to tell them that, look, we have to make a calendar which accounts for festivals. We have to see the movement of the forces as well who are going to be looking after this process. What do you make of this constant complaining that the opposition does because of these 7 phases? It's a 1.4 billion people country. Let me put it in a lighter vein. Belly aching is our habit. You might get the best of food, the most nutritious food, but you will belly ache. No, this was not okay in that, or the plate was not okay. That is the case. I think they have thought of everything. They are ensuring that the voter percentage, which turns out is much larger or much higher than what has happened earlier. Therefore, they've taken into account the festivals that will come. So, I mean, there's no end to cribbing. Let's give them a pat on their back and let's get on the job of preparing ourselves to take part in this dance of democracy. And sir, it's more or less given that the Bharatiya Janata Party is going to come back to power. The Prime Minister on a number of occasions has voiced his aspiration for Ab Ki Baar 400 Par. According to you, sir, subjectively, what do you feel that, is going to be the mantra that the people are going to reward the BJP for? The mantra for the last 10 years has been how to look after people, how to cater to what he calls Gyan, the Garib, the Yuva, the Andata, and the Mahila Shakti. He has focused on ensuring that development reaches the last man. You look at all the schemes that are there, whether it is a girl child, whether it is a girl going to school, whether it is the type of jobs that can be created. There is every possible effort that has been made to ensure that we get on the right path to become a developed nation. And I think that is what counts. And my feeling is people realize this. This is what it is. The type of advantage that they are getting. There are large number of people who have come above the below poverty line. So
a country is looking up. And let's give the credit to the person who has done it. And I'm sure people will keep in mind always that it is Prime Minister Modi who has done a great amount for the nation. Sir, a statement was also made during this meeting which spoke and pointed out the plummeting levels of political discourse. Is this something that the Bharatiya Janata Party also recognizes? And that's why when the second list of candidates came out, we had some new faces and some of the old faces have disappeared. Is this something that the Bharatiya Janata Party is sensitive about? That, as a secular nation, the constitution and its its elements have to be respected? The Bharatiya Janata Party has always been cognizant of this. It is not that it is becoming cognizant now. And we have always propagated that the discourse has to be within the bounds of civility. So that is what it is. And I'm quite sure everybody watches as to what is being done and everybody hears what is being said. Very rightly, the Election Commissioner also said that before you say something, please remember that your words are there digitally. For the next 6-7 years, they'll be there floating around. So we have to be very careful. General V.K. Singh, appreciate you taking out the time, speaking with us. Thank you so much, sir, and wishing you a very good luck for the upcoming election. Thank you very much. Thank you so much, sir. All right, we're going to cut across to my colleague Madhu Sharma now, who's of course been regularly giving us updates from South India. Madhu, if you can hear me. Madhu? Yes, Vineet. 7 phases of Lok Sabha elections. We heard a number of important comments that came in specifically by the Chief Election Commissioner, who went on to say that these phases are being done so that the consolidation of votes happens in such a way that there is fairness. We want to understand what is the mood from where you are. I believe you are outside of Charminar. Try and speak with people as to what are they in the mood for. We spoke to people from Madhya Pradesh, from UP, from Jammu and Kashmir, as well as Delhi. There is a very palpable, a very strong, very robust Modi wave in the Hindi heartland as well as North India. Well, Vineet, Lok Sabha elections in the southern India will be held from April 19th to 13th May, with Karnataka voting in 2 phases on April 26th, 14 seats in Karnataka, and on May 7th, 14 seats, and Tamil Nadu on April 19th, and Andhra Pradesh on May 13th, and Kerala on April 26th, and Telangana on May 13th. So Telugu-speaking states will be voting on the same day, and as per the Parliament poll schedule announced by the Election Commission, India, the Union Territory, and other will also be going to poll vote on April 19th. But if you speak of Andhra Pradesh Assembly poll, that is also will be held simultaneously on May 13th is what we have learned. And right now, Vineet, I am here at Charminar, which is the constituency of Asaduddin Owaisi. He is a current MLA and he's been winning for the continuously 5 continuous times. And I'll just talk to people here and see what kind of change that they require. Sir, अभी यहाँ पे आप लोकल क्यों हैदराबाद से हो? आधुनिक से कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नूल में भी एमपी है, वो हाल ही में टीडीपी मतलब ज्वाइन हो चुका है। आपको क्या लगता है कि आप कौन से मुद्दे पे वोट करोगे? जैसा वाईएसआर और टीडीपी, वाईएसआर का एमपी था कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, अभी टीडीपी में झम मार चुका है। अब किसको सपोर्ट करना, जनता अब कुछ भी नहीं मालूम है, 50-50 है। వైఎస్ఆర్ को సపోర్ట్ करना तो हम लोग हैं సార్. ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో మీరు ఓట్ చేయబోతున్నారు, ఏ అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఓటేస్తున్నారు? వైఎస్ఆర్ కి ఓట్ చేయాలంటే ఉన్నాం సార్. అంటే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది జనాల కోసం? डेवलपमेंट ఏమైనా मतलब डेवलपमेंट वगैरह कुछ किया है? डेवलपमेंट क्या भी नहीं करा। वो लेडीज क्या को क्या है, अम्मा बड़ी 18 ईयर 45 ईयर्स के बाद से 18,000 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद से लेडीज ही डाल रही है, जेंट्स कुछ भी नहीं डाल रही है। बहुत वाईएसआर की प्रभुत्व में बहुत मुश्किल हो रही है, पब्लिक बहुत इशू है। जो भी कामा नहीं हो रहे हैं, जो कामा होना चाहिए वो कामा नहीं हो रही है। सर आप बताइए, आप लोकल ही हो? नहीं, मैं भी कर्नूल से हूँ। आप भी कर्नूल के, तो आपको क्या लगता है उनकी बात से आप सहमत है कि वाईएसआर को वो वोट देंगे? हाँ, सहमत। क्या कौन से विषय पे आप वोट करेंगे? मतलब क्या क्या आपके चुनावी मतलब मुद्दे हैं जिसको आप जहन में रख के आप वोट करेंगे? जगन तो मार को एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा किया कर्नूल में। आंध्रा को डेवलपमेंट बहुत किया एजुकेशन पर्पस में।
तुम्हारे को गवर्नमेंट स्कूल में आके पूरा तुम्हारे को एजुकेशन पूरा फ्री रख दिया। अभी टीडीपी के अंदर भी गया है वहाँ का करंट एमएलए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब बहुत सारे एमपी है, एमएलए है, वो टीडीपी के अंदर जा रहे हैं और माहौल काफ़ी गंभीर हो रहा है आंध्र इलेक्शंस के अंदर। दोनों पार्टियाँ मतलब बखूबी कैंपेन कर रही है। वो चल रहा वही तो, लेकिन वाईएसआर को जिता लेना हमारा ये है। YSR को जिताएंगे। This is this is what people say, Vineet. Well, in Andhra Pradesh, the citizens of Kurnool districts were here. We'll try and talk to the locals if you find any here. Hyderabad has been a constituency where a lot of Muslim population is here, and we get to see a lot of major issues that the people of Hyderabad have been always pointing out. And we'll try and talk to other locals here, and and also not to forget that BJP has fielded Madhavi Lata, who is who will be contesting against Asaduddin Owaisi in this particular constituency, and there are a lot of locals here who are betting. Ma'am, आप మీరు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారా? లేదండి, ఆంధ్ర మాది. ఆంధ్ర. సో మ్యామ్, ఆంధ్రాలో కూడా ఎన్నికలు ఉన్నాయి, ఎలక్షన్ కమిషన్ డేట్ అనౌన్స్ చేసింది. దాని మీద మీరు ఏ అంశాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఓట్ చేస్తున్నారు? మేము ఇంకా ఏమీ అనుకోలేదండి, మాకైతే పెద్దగా ఇది తెలీదు. మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే బాగా చేసింది, బాగా చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ స్కీమ్స్ ఏమైనా చేసిందా? ఏమైనా షర్మిల అమ్మ అంటారు ఆంధ్రలో షర్మిలకి. మాకు వచ్చేసి కేతిరెడ్డి మా Okay, let me also go across to my colleague Rushali, who's joining us from Mumbai at this point in time. Rushali, 48 constituencies in Maharashtra, 5 phases. Phase 1, 5 seats. Phase 2, 8 seats. Phase 3, 11 seats. Phase 4, 11 seats again. And Phase 5, 13 seats, and the counting is going to take place on the 4th of June. Please try and assess what is the mood in Maharashtra. It is a very important state for the Bharatiya Janata Party, as we have seen because of the number of permutations and combination of formative governments that have existed in this state for the past few years. Well, let me tell you, it's very interesting. It's going to be very interesting for the Maharashtra, because Maharashtra has seen the split in Shiv Sena, split in NCP. But after the split, not a single election took place across the state, and that's the reason why this is very important general election, because here all the parties are going to test their water. We have here a few Mumbaikas with me. मैं उनसे बात करूंगी. मुझे बताइए, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, 7 चरणों में इलेक्शन होगा। 4 तारीख को जो है वो नतीजे सामने आने वाले हैं। आप वोटर हैं, आप एक जागरूक नागरिक के तौर पे कैसे इस इलेक्शन को देखते हैं? पहली तो ये बात है कि हमें जाके अपना इलेक्शन में मतदान का हक अदा करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। जो भी यहाँ पे ऑल इंडियन शुड कास्ट देयर वोट, एंड दैट इज व्हाट द फेस्टिवल इज अबाउट। तो हमारा तो यही मानना है कि जो इलेक्शन हुआ है उसका पूरेपूर फायदा होना चाहिए। अपना डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हर नागरिक ने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मूड क्या कहता है? मूड ऑफ द नेशन क्या है? मूड ऑफ द नेशन इज, लेट्स सी, इट विल कम। लेकिन क्या लगता है, किसका बोलबाला रहेगा, कौन सी पार्टी का, ऐसा लगता है? We cannot say that way. It is the region-wise differences, but whoever the best, it will come up. कुछ सीनियर सिटीजन है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन आ रहा है, किसका इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, कैसा देखते हैं इसको? अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, चुनाव के नतीजे आने के बाद बराबर है, लेकिन किसका बोलबाला रहेगा लगता है? किस पार्टी का बोलबाला रहेगा? किसका बोलबाला है? अपने लोगों को दूसरा काम नहीं है, तो काम होना। All right, Rushali, appreciate you speaking with us. We're going to dip into a short break, but we'll continue this rolling coverage of our assessment of the Lok Sabha elections, which are in fact going to be so important. 7 phases, 543, and of course a multitude of topics to pick up from. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.